ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ کشمیری خواتین کے خوابوں کو پنکھ دینے والی عائشہ عزیز سے ایک ملاقات۔ پونچھ میں لوگ کر رہے ہیں گوبر گیس کا استعمال، زندگی بن رہی ہے خوشحال۔ پلوامہ کے نوجوانوں کے لیے پی ایم ایمپلائمنٹ اسکیم، امید کی نئی کرن۔ راجوری میں اپنی نوعیت کا ڈسٹرکٹ کبڈی ٹورنامنٹ کا اہتمام۔ سری نگر میں حکومت کی جانب سے نوجوان انٹرپرینرز کے لیے نمائش کا اہتمام۔ ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو موقع ملے تو وہ ترقی کی فضا میں زبردست اڑان بھر سکتے ہیں، یہ ثابت کیا ہے جنت بے نظیر کی عائشہ عزیز نے۔ 25 سالہ عائشہ جموں و کشمیر اور ملک کی کم عمر خاتون پائلٹ ہے جنہوں نے صرف 16 سال کی عمر میں ہی فلائنگ لائسنس حاصل کی تھی۔ دیکھیے خواتین کے خوابوں کو اڑان دینے والی یہ خاص رپورٹ۔ 25 سالہ عائشہ عزیز ملک کی کم عمر خاتون پائلٹ اس وقت بن گئیں جب اسے 16 سال کی عمر میں ہی فلائنگ لائسنس مل گئی۔ عائشہ کمرشل پائلٹ ہیں اور مسافر طیاروں کو اڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے خواب کو بھی اڑان دے رہی ہیں، جبکہ وہ کشمیری خواتین کے خوابوں کو پنکھ بھی دے رہی ہیں۔ مردوں کے غلبہ والے پروفیشن میں عائشہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے بارامولہ علاقے کے خواجہ باغ گاؤں کی رہنے والی عائشہ عزیز کشمیر کی پہلی لڑکی ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ I would love traveling، مجھے ٹریول کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور کیونکہ میرا ننیحال کشمیر میں تھا اور ہم اکثر کشمیر آتے جاتے تھے تو I was very fascinated by flying and to be at 40,000 feet اس کا ایک الگ ہی چارم ہوتا ہے and you are flying constantly، آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں، you get to meet so many different kind of people. So I think these things were the reasons why I wanted to become a pilot and ان وجہوں کے ریزنس کی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ آپٹ کی۔ یو ہیو ٹو بی مینٹلی ویری ویری اسٹرانگ ان دس فیلڈ۔ آئی تھنک جو میں نے ابھی تک ایکسپیرئنس کیا ہے یا لرن کیا ہے، آپ جتنا ہی اپنے mental if you're not mentally strong it's going to be difficult for you to go ahead. تو آئی تھنک اس پروفیشن میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتا ہے وہ آپ کا دماغی اسٹیٹ بہت اسٹیبل ہونا چاہیے، بیکاز یو آر کیرنگ 200 passengers behind you. So it's a great responsibility. عائشہ بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ عائشہ کے اس خواب کو پورا کرنے میں اس کے خاندان نے اس کا ساتھ دیا اور جموں کشمیر سے ممبئی شفٹ ہو گئے۔ 10ویں کی تعلیم کے بعد عائشہ کے والد نے فلائنگ کلاس کے لیے اسے داخلہ دلوایا، تب وہ محض 15 سال کی تھی۔ اس وقت پہلی بار عائشہ نے اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ اس نے پہلی بار جنوری 2012 میں سیسنا 172R کی اڑان بھری۔ عائشہ عزیز نے کہا کہ کشمیری خواتین نے گزشتہ کچھ سالوں میں کافی ترقی کی ہے اور تعلیم کے میدان میں غیر معمولی طور کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کشمیری خواتین خصوصی طور پر تعلیم کے شعبے میں بہتر کام کر رہی ہیں۔ ہر دوسری کشمیری خاتون ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں۔ I think Kashmir has a very, very incredible remark on a level of growth. In fact, میں اتنا ممبئی میں بھی نہیں دیکھتی ہوں لڑکیوں میں، like اگر ہم statistically دیکھیں، I think Kashmiri women have excelled and mashallah they are doing so beautifully well.
I think even in aspects of education, every second female آپ ملے یہاں پہ, she is either pursuing masters یا تو وہ ڈاکٹریٹ کر رہی ہے, اور اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, وہ علم کی طرف اتنے جذبے سے بڑھ رہی ہے, and you know with that passion within them. So I think it's beautiful. People of this valley are doing great, both the guys and the girls. کمرشل پائلٹ لائسنس کے لیے 200 گھنٹے میں سے 80 گھنٹے پورے کرنے لازمی ہوتے ہیں, جس کے لیے کم از کم عمر کی حد 18 سال ہوتی ہے, اور اس سے پہلے وہ 18 سال کی ہو گئی تھی. عائشہ کا کہنا ہے, میں نے یہ شعبہ اس لیے انتخاب کیا کیونکہ مجھے کم عمری سے ہی سفر کرنا اچھا لگتا تھا اور پرواز مجھے پرجوش کر دیتی تھی. اتنے سارے لوگوں سے ملنا ہو جاتا ہے, اس لیے میں پائلٹ بننے کی خواہش مند تھی. اس میں چیلنج تھا کیونکہ یہ 9 سے 5 بجے تک کی عام ڈیسک کی طرح نہیں ہے. یہ ہر والدین کا فرض ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جس مقصد اور جس ارادے سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے, اور سٹیپ بائی سٹیپ جو کچھ بھی ہو دامے دل میں قدمے ہم بچوں کو ان کی مستقبل اور ان کو جہاں پہنچنا ہے ہمیں جو کچھ بھی ایز اے فنڈامنٹل رائٹس آف پیرنٹس وی شوڈ فلفل ٹو اچیونگ دیئر گول اینڈ ٹارگیٹ. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, یہ سنگ و خش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. عائشہ نے اپنے والدین کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنانے میں کافی مدد کی. انہوں نے کہا, میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے والدین ملے جنہوں نے ہر چیز میں میرا تعاون کیا. صوبہ جموں کے سرحدی و پہاڑی ضلع پونچھ میں لوگ اب بایو گیس, جسے گوبر گیس بھی کہا جاتا ہے, کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا رہے ہیں. محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے لوگوں کو بایو گیس پلانٹ قائم کرنے میں بھرپور تعاون فراہم کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. گائے بھینسوں کا گوبر بھی قیمتی ہے, اسے سنبھالیے کیونکہ عصر حاضر میں یہ بایو گیس کی پیداوار میں نمایاں اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. بایو گیس دراصل گائے بھینسوں کے گوبر سے حاصل ہوتی ہے, اس لیے اسے گوبر گیس بھی کہا جاتا ہے. گوبر کے ایک نہیں بلکہ 2 فائدے ہیں. جہاں گوبر گیس توانائی کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہیں یہ کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. صوبہ جموں کے پہاڑی اور سرحدی ضلع پونچھ میں محکمہ ایگریکلچر کے تعاون سے لوگ خاص طور پر کسان گوبر گیس کا استعمال کرتے ہیں. بہت اچھا ہے یہ, ہم اسی گیس سے کھانا بناتے ہیں, اسی سے سب کچھ کرتے ہیں. دوسرا گیس سلنڈر ہم نے لگایا ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں گوبر گیس سے ایک ہی بالٹی ڈالتے ہیں صبح گوبر کی, اسی سے چل رہا ہے, اسی سے ہم کھانا پورا بناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب گاؤں والے ایسے ہی بنائیں, ایسے ہی چلائیں. پونچھ میں کئی کسانوں نے اپنے گھر کے احاطے میں ہی بایو گیس کی پلانٹ قائم کیے ہیں. یہ پلانٹ کسانوں نے محکمہ ایگریکلچر کے بھرپور تعاون سے قائم کیے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. ملک میں تو گوبر گیس کی اصطلاح کئی عشروں پہلے عام ہو گئی تھی اور اب جموں کشمیر کے دیہات میں گھروں پر بھی بایو گیس کا استعمال رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے. گھر والے ہر روز صبح ہی صبح ایک بالٹی گوبر اور کچھ پانی بایو گیس پلانٹ میں ڈالتے ہیں جس سے گیس بنتی ہے. گھر والے صبح کے ناشتے سے رات کے کھانے تک ہر چیز اسی گیس پر پکاتے ہیں. گوبر گیس یہ جو ایگریکلچر نے دیا تھا اور اس میں کچھ پیسہ میں نے اپنا ہی لگایا اور 15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں میں. یہ چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے اور اس سے ہی کھانا بناتے ہیں ہم اور پورا استعمال کرتے ہیں. میری یہی آپ سے انورودھ ہے کہ گاؤں والوں سے یہی ہے کہ گاؤں والے بھی یہ گیس پلانٹ لگائیں اور اپنا اچھی طرح سے گزارا کریں. دیہی خواتین کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ بایو گیس آنے سے پہلے متذکرہ دیہات میں لکڑیوں پر کھانا پکایا جاتا تھا.
इसका धुआं आंखों में भर जाता था और जलन भी होती थी। बर्तनों पर भी कालिक लग जाती थी। लेकिन बायोगैस ने धुएं, जलन और बर्तन काले होने का मसला खत्म कर दिया। पूंछ के जल्लास गांव में किसान गुज़िश्ता एक दहाई से बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा प्लांट कायम करने में सब्सिडी भी देता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने एरिया के किसान भाइयों को कि जलास के किसान भाइयों को और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के किसान भाइयों को कि वो लोग कम से कम ये अपने यहाँ पे बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल करवाएं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी उनकी काफ़ी हेल्प करता है। उसमें उनको जो उसकी टोटल कॉस्ट आती है उस पर आधी कीमत महकमा एग्रीकल्चर भी उनको प्रोवाइड करवाता है। कई फवायद के अलावा बायोगैस का एक और फायदा ये भी है कि अब लकड़ियों के हसूल के लिए हरे भरे दरख्तों का कत्ल नहीं होगा। जंगलात बच जाएंगे। जंगलात बच गए तो समझिए माहौल बच गया। मुल्क माहौलियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बच गया और ये सब मुमकिन हो सकेगा सिर्फ गोबर से। लिहाजा माहिरीन सही कहते हैं कि गाय भैंसों का गोबर भी कीमती है, इसे संभालिए। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत वादी कश्मीर में छोटी छोटी और दरमियाना सन्नतों को फरोग दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत ख्वाहिशमंद सन्नतकारों को घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए माली मदद फराहम की जाती है, जबकि इस प्रोग्राम से रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के नौजवान ताजिर काफी फायदा उठा रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। वजीर आजम रोजगार स्कीम के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड नौजवानों को रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए माली मुआवनत कर रहा है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों ने स्कीम का फायदा उठाकर अपने रोजगारी यूनिट कायम किए हैं। थोड़ा बेरोजगारी था, मैं उतना मेरे पास पैसा वैसा नहीं था, थोड़ा कम ही था, तो बैंक के पास जाया तो बैंक वाले कह रहे थे कि इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फिर मैं गया KVIB वाले के पास, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी मदद की मेरे लिए। वहाँ पे मुझे स्कीम मिली और उस स्कीम का नाम है PMEGP। उसी के तहत उन्होंने मुझे लोन दिया, थोड़ा लोन सेंक्शन किया, फिर बैंक ने ही फाइनेंस किया और फिर उसमें थोड़ी सब्सिडी भी मिल गई, जिसकी वजह से मेरी काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक फ्लैगशिप मरकजी प्रोग्राम है, जिसका बुनियादी मकसद ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद के लिए पायदार रोजगार पैदा करना है। इस प्रोग्राम के तहत बेरोजगार नौजवानों को अपने कारोबारी इदारे कायम करने के लिए आसान शराइत पर कर्जा जात दिए जाते हैं। जिला पुलवामा में कई नौजवानों ने स्कीम से फायदा उठाया और अपने कारोबारी यूनिट कायम किए। मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का भी और इन लोगों का कि जो खादी एंड विलेजेस है, इन्होंने हमारे साथ मदद किया। फिर हमने और बादाम खरीदे, अखरोट खरीदे, उन्होंने पैसा दिया, मदद किया, उससे हमने कार जो यूनिट बढ़ाया। फिर हम इसके साथ पूरी फैमिली गुजारा कर रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, लगभग 20-25 फैमिली, उनको भी देते हैं बादाम तोड़ने के लिए, वो भी देते हैं। पुलवामा में कई नौजवानों ने मरकजी माली मुआवनत वाली स्कीम के तहत न सिर्फ कारोबारी यूनिट कायम किए हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा किए। पुलवामा में नए रोजगारी यूनिट्स कायम होने से नौजवानों के लिए नए रोजगार के वसाइल और मौके पैदा हो रहे हैं। जिले के नौजवान प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से खुद इन्हसार बन रहे हैं। मैं बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जो हमारा ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम PMEGP है, उसके तहत हम आपको लोन दे सकते हैं। किसी भी स्कीम में आप आ जाइए हमारे पास, कोई भी काम करना चाहोगे तो हम आपको वो लोन दे सकते हैं। 35% सब्सिडी दे सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 25 लाख तक दे सकते हैं। जो ये सर्विस सेक्टर है उसमें आपको 10 लाख तक लोन दे सकते हैं। इस स्कीम के तहत जिले में छोटे छोटे सन्नती कारोबारी यूनिट भी कायम हो रहे हैं।
पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में हर सतह पर खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत जिला इंतजामिया ने जिला सतह पर इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली कई टीमों ने शिरकत की और खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाए। सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। कोविड-19 के बाद ये अपनी नौयत का पहला कबड्डी टूर्नामेंट था, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली टीमों ने शिरकत की। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से इधर खेलने आया हूँ राजौरी में। हम कबड्डी का स्टेट लेवल हम खेल रहे हैं इधर। और जब से ये कोरोना का मसला हो गया, पिछले लॉकडाउन से आज ये पहली बार इधर, पिछले साल से पहली बार ये इधर जो राजौरी में ये कबड्डी टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया है। वो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम लॉकडाउन में डिप्रेस में थे, घरों में थे बंद। जब ये इधर आए तो बहुत ही मज़ा आया सर, बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है इधर। हम राजौरी में इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टूर्नामेंट मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने के साथ साथ नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि नौजवान गलत आदत में मुब्तला हो रहे हैं और खेल कूद वाहिद जरिया है जो न सिर्फ तंदुरुस्ती की जमानत है बल्कि मनफी सोच को भी दूर रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपसी भाईचारा तो स्पोर्ट्स जो है उसमें बढ़ता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो आज का हमारा यूथ है वो कुछ गलत आदतों में मुलव्वस हो रहे हैं। तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो अपनी गलत आदतों को तर्क करके अपनी जो एनर्जी है उसको यहाँ स्पोर्ट्स में आके यहाँ अलग अलग जो हमारे स्पोर्ट्स जिसमें उनमें चैनलाइज करें, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा माहौल है। राजौरी में कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने किया था। जिला इंतजामिया के आला हुकाम ने कहा कि कामयाबी और शिकस्त खेल सरगर्मियों के दो पहलू हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा जिंदगी में बहुत सी चीजों का दर्ज देता है और ये देखा गया है कि खिलाड़ी ज्यादा नस्ब व सब्त रखते हैं और वो जिंदगी के मुख्तलिफ हालात को मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में निभा सकते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूरी है। यहाँ आज कबड्डी का मैचेस हैं, 17 ज़िले यहाँ आए हुए हैं बच्चे, 17 ज़िला से बच्चे आए हुए। ये यहाँ टूर्नामेंट्स जो हैं जब ख़त्म होंगे तो बच्चे यहाँ जो है यहाँ का कल्चर भी देखें और बाकी वाला जो भी इंटरेक्शन इनकी होगी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम करवाएंगे ताकि बच्चे अच्छा यहाँ से पैगाम लेके जाएं। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर खेल सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है और इस ज़िम्न में हर एक जिले में तरह तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का एहतमाम किया जा रहा है। राजौरी में ये कबड्डी टूर्नामेंट इसकी एक कड़ी है। वादी कश्मीर में खुद रोजगार के जज्बे को फरोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर में हुक्काम की जानिब से नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने अपने स्टॉल्स लगाकर न सिर्फ अपनी जहानत का मुजाहरा किया बल्कि विरसे की हिफाजत का पैगाम भी दे दिया। वबाई मर्ज कोरोना वायरस की वजह से परेशान हाल जम्मू कश्मीर के यंग एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बराह रास्त मार्केटिंग में मुआवनत फराहम करने के लिए हुकूमत ने कश्मीर हाट यानी नुमाइशगाह श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया। हुकूमती पहल से फायदा उठाकर नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ अपने स्टॉल लगाकर अपनी जहानत और सलाहियतों के जौहर दिखाए। जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हमारे क्राफ्ट से रिलेटेड लोग हैं, जो हाथ की कढ़ाई का काम करते हैं, शॉल बुनते हैं या आपका पेपर माशी से है या शॉल वाले हैं या कलीन वाले हैं या डिफरेंट किस्म से है, तो उनको एक वेंट मिल रहा है। इतने करीबन 1-1.5 साल के बाद उनको एक मौका तो मिल रहा है अपना चीज़ दिखाने का। लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो उनका जो मेंटल स्ट्रेस है उसके लिए एक बूस्टर है ये, और दूसरा उनको भी ये लगेगा कहीं ना कहीं कि कोई जो एक्टिविटी रुक सी थम सी गई थी वो दोबारा अपने माहौल पे आ रही है। कोविड-19 वबाई बीमारी के
फैलाव को रोकने के लिए आयद पाबंदियों के पेश नजर रवां साल कश्मीर से दीगर रियासतों और बैरून मुल्कों में मशहूर दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत की बरामद को शदीद धचका लगा है। कारोबारी नुकसानात पर काबू पाने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। पीपल चाहते हैं कि एग्जीबिशंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो हमारी जगह कि हम अपने एंजाइटी को बाहर निकाल सके, हम अपने टेंशन को बाहर निकाल सके। तो शुक्र मनाते हैं हम उनका भी, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है वो भी बहुत अच्छे है कि उन्होंने सोचा कि हम इस टाइम पे ऐसा वाला मतलब एक ऐसा वाला ये चीज़ करेंगे कि जिससे लोगों में थोड़ा बहुत रिलाई मिल जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए। नुमाइश के दौरान यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी अपनी तैयार करदा मसनूआत के स्टॉल लगाए। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना वायरस ने जिंदगी का चक्का जाम किया और मौसम सरमा के नतीजे में यहाँ वैसे भी जिंदगी की रफ्तार थम जाती है। उन्होंने कहा कि नुमाइश का एहतमाम करने से न सिर्फ उनकी जहनी कोफ्त दूर हो गई बल्कि अपनी मसनूआत को फरोख्त करने का मौका भी मिला। घर पे बैठ के लोगों को डिप्रेशन, मेंटल इलनेस हो गया, यहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा आने का और घर से बाहर आने का, उनको बूस्ट मिलेगा कि नहीं कुछ हो रहा है। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो कश्मीर में होनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे। हुकूमत ने मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की हौसला अफजाई के लिए एक मुस्तकिल मुहिम का आगाज भी किया है ताकि नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपने तैयार करदा मसनूआत को फरोख्त करने में बराह रास्त मार्केट तक रसाई मिल सके। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।